Ignited Minds Tutorials, a trusted educational platform, has created an enlightening series of videos on the topic of reflection of light, aimed primarily at secondary level school students studying under Darius boards. These videos can be easily accessed on YouTube. The tutorials provide a comprehensive knowledge explanation of this fascinating subject, guiding students in understanding the principles and processes involved in the reflection of light. With clear and concise explanations, these videos offer a valuable resource for students preparing for their school examinations. By presenting the topic in a visually engaging manner, Ignited Minds Tutorials ensures that students grasp the concepts of reflection of light effectively and are well prepared for their exams. तो हमने देखो यहाँ पे रूल्स देखे थे, रूल्स ऑफ मेकिंग इमेजेस, ठीक है, बाय कर्व्ड मिरर्स, ठीक है. सो रूल्स ऑफ इमेजेस मेड बाय कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है. क्या क्या रूल्स है बोलो, एनीवन. चलो यहाँ पे ले लेते हैं अपना कॉनकेव मिरर और यहाँ पे हमने ले लिया भाई साहब कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है. पहला रूल बोलो क्या है, बोलो जल्दी से बोलना है भाई साहब. क्या एक पैसे की पढ़ाई होती है भाई साहब. अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus, ठीक है. A ray of light parallel to principal axis after reflection passes through focus. ये हो गया कॉनकेव मिरर का. कॉन्वेक्स मिरर का क्या हो जाएगा, a ray of light which is parallel to principal axis after reflection appears to pass through the focus, appears to be passing from the focus, ठीक है. क्लियर है. चलिए भाई साहब दूसरा रूल बताइए फटाक से. अ रे ऑफ लाइट passing through the focus, a ray of light passing through the focus after reflection is parallel to principal axis, ठीक है. a ray of light passing through the focus after reflection is parallel to principal axis. यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब, a ray of light, ठीक है, a ray of light passing through the focus, a ray of light passing through the focus after reflection a ray of light appearing, ठीक है, ray of light actually appearing to be passing through the focus after reflection, ठीक है, is parallel to principal axis. तीसरा रूल भाई साहब क्या हो जाएगा, a ray of light, ठीक है, a ray of light passing through center of curvature, retraces its path in the same direction, ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, a ray of light appearing to pass through center of curvature, appearing to pass through
center of curvature, a ray of light appearing to pass through center of curvature, ठीक है, retraces its path in the same direction, retraces its path in the same direction, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो जैसे फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या है, a ray of light parallel to principal axis after reflection passes through the focus। तो समझ लो भाई साहब यहाँ पे ये पहला वाला हम देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। लेट्स से ये भाई साहब आपका एक कॉनकेव मिरर हो गया। a ray of light parallel to principal axis after reflection will pass through the focus। ये कहाँ से पास करेगा भाई साहब, फोकस से पास करेगा, ठीक है, ये पहला वाला हो गया। a ray of light passing through the focus, दूसरा वाला हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से ये हो गया आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे हमने रे ऑफ लाइट ले लिया, ठीक है। अगर समझ लो ये इसका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये है, ठीक है। और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, अ रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो समझ लो भाई साहब यहाँ पे है आपका मिरर, ठीक है, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब फोकस, यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है ये तो वापस ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके 3 डायग्राम्स, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। अच्छा, इसके 3 डायग्राम्स इधर कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। सो तीनों में भी भाई साहब आपका कॉन्वेक्स मिरर और इधर भी लेट्स से कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ओके। सो रे ऑफ लाइट हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, इधर कॉन्वेक्स मिरर है, मतलब इसका पॉलिश सरफेस ये वाला होगा। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका फोकस तो भाई साहब इस तरफ होगा, है ना, फोकस विल बी दिस साइड और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी भाई साहब इस साइड होगा। तो रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। सो ये क्या होगा, इट विल अपीयर टू बी इमर्जिंग फ्रॉम द फोकस, तो ऐसा लगेगा कि भाई साहब यहाँ से इमर्ज हो रहा है, ठीक है। तब यहाँ से आपका एक ऐसा रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है। ये हो गया आपका रे ऑफ लाइट। अ रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis after reflection would appear as if it is coming from the focus, ठीक है, ओके। इसमें क्या हो जाएगा, देखो, a ray of light passing to the focus after reflection is parallel to the principal axis, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई साहब a ray of light which is parallel to the principal axis after reflection, ठीक है। लेट्स से अगर appearing to be passing to the focus, तो यहाँ पे आपका एक मिरर है और लेट्स से ये है इसका फोकस, ठीक है। A ray of light which is basically appearing, जैसे लेट्स से ये ऐसा लग रहा है कि ये वैसा वैसे जा रहा है, ठीक है, दिस इज गोइंग लाइक दिस, समझ लो ये आपका रे ऑफ लाइट है विच इज ऐसा दिख रहा है कि लेट्स से इट इज गोइंग टू पास टू द फोकस, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भाई साहब किसके पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ओके। तीसरे केस पे आते हैं हम, देखो, अ रे ऑफ लाइट है यहाँ पे, ठीक है, ये 3 कन्वेंशंस आपके यूज होते हैं। तो आपका रे ऑफ लाइट है, ये आपका लेट्स से हो गया फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो लेट्स से एक कोई रे ऑफ लाइट है जो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है, सो दैट इट अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर भाई साहब ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये अपीयर हो रहा है, ठीक है, इट अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो दिस रे ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग द सेम पाथ, ये भाई साहब सेम पाथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। सो दीज आर द रूल्स दैट वी नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू ड्रॉ रे डायग्राम्स फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, ये रूल्स आपको भाई साहब फॉलो करने हैं। ज़्यादा करके स्फेरिकल मिरर्स में आप किससे डील करेंगे, कॉनकेव मिरर्स से, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके पोजीशंस लेंगे, ठीक है। तो ये पोजीशंस क्या क्या हो जाएंगे, देखो, एक पोजीशन होगा, देखो जैसे समझ लो ये कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है,
लेट्स से भाई साहब यहाँ पे हमने एक कॉनकेव मिरर, ये आपका लेट्स से एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अरे क्या है ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका भाई साहब है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये इसका है भाई साहब प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ओके, तो अभी आपका आता है देखो यहाँ पे फोकस, दिस इज बेसिकली व्हाट फोकस, और लेट्स से ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको यहाँ पे क्या मालूम है कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दिस इज व्हाट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज आर, और ये वाला लेंथ कितना है भाई साहब, व्हाट इज दिस लेंथ, दिस लेंथ इज एफ, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ एफ, या हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अभी हम ऑब्जेक्ट को कहां कहां पे प्लेस करेंगे, ठीक है। पहले भाई साहब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे यहां पे, तो ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे प्लेस किया है बोलो, ये पोल हो गया, बिटवीन द पोल एंड द, तो बिटवीन द पोल एंड द फोकस, ठीक है। तो पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, यहां पे रखेंगे। ये एक हम देखेंगे इमेज कैसे बनेगा इसका, ठीक है, क्लियर है। फिर कहां रखेंगे भाई साहब ऑब्जेक्ट को उठाकर, ऑब्जेक्ट को भाई साहब उठाकर रखेंगे फिर हम एट फोकस, ठीक है। तो हमने भाई साहब ऑब्जेक्ट को रखा कहां पे, फोकस पे, ठीक है। तो आपका पहला पोजीशन क्या हो गया, बिटवीन पोल एंड फोकस, दूसरा पोजीशन क्या हो गया, एट फोकस, ठीक है। तीसरा पोजीशन क्या हो जाएगा बच्चा वाड़ी, और जल्दी बोलने हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। सो तीसरा पोजीशन आपका हो गया यहाँ पे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चौथा पोजीशन क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चौथा पोजीशन आपका हो जाएगा भाई साहब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर क्लियर क्लियर। और पांचवा पोजीशन क्या हो जाएगा बोलो, पांचवा पोजीशन हो जाएगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका भाई साहब पांचवा पोजीशन, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और छठवां पोजीशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है। सिक्स्थ पोजीशन विल बी एट इंफिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी। तो इन सब में आपको भाई साहब निकालना पड़ेगा कैसे कैसे हमारे पोजीशंस इमेज के बनेंगे और इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, ठीक है। ओके, तो चलिए पहले बार हम आते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है भाई साहब, पोल और फोकस के बीच में रखा है। तो अ रे ऑफ लाइट, तो हम तीन रेज लेंगे, पहला रे लेंगे ऐसा, इसकी मुंडी से जाता हुआ, ये ऐसे गया तो ये रिफ्लेक्ट हुआ भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। इसकी मुंडी से एक और रे लेंगे विच विल बी बेसिकली पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होता है वो भाई साहब उसी डायरेक्शन में वापस आता है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे ये दोनों कभी मिलने ही नहीं वाले, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इमेज विल बी एट इंफिनिटी, ठीक है। सो पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज भाई साहब कहाँ पे होगा, ये इमेज भाई साहब ऐसा कहीं पे यहाँ पे तो लोकेट कर नहीं सकते, तो ये बियॉन्ड द इमेज होगा, तो ऑब्वियसली बियॉन्ड द मिरर होगा, तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, दिस विल बी वर्चुअल इमेज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। चलिए देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे समझो भाई साहब एक मिरर है, so this is basically a concave mirror, ठीक है, ये आपका है भाई साहब कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इसका हम ड्रॉ कर लेते हैं भाई साहब प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पे, दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में क्या चीज़ों को मार्क करेंगे हम, देखो ये हो गया पोल, ये वाला हो गया आपका पोल, दिस विल बी लेट्स से फोकस, और इसके जरर डिस्टेंस पे आपका हो जाएगा भाई साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका फोकल लेंथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, बिटवीन पोल एंड द फोकस, तो यहाँ पे रखा है हमने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तीन रूल्स आपके क्या हैं, पहला रूल क्या है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट उठा लेंगे, रे ऑफ लाइट इमेजिनरी होती है भाई साहब, ठीक है। ये हमने भाई साहब क्या ले लिया, रे ऑफ लाइट, देखो किसके पैरेलल ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया,
अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से जाएगा भाई साहब, फोकस से जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये भाई साहब हो गया फोकस से जाता हुआ, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी हम क्या लेंगे, हम देखेंगे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, और ये भाई साहब इसकी मुंडी है, यहां से एक रे ऑफ लाइट को ज्वाइन कर दो भाई साहब, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट, मतलब ये ऐसा हमने एक इमेजिनरी ऐसा ज्वाइन किया और इसी को भाई साहब एक्सटेंड कर दिया, इसी को भाई साहब एक्सटेंड कर दिया, मतलब कैसा है, आप दिस इज द रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, मतलब ये अगर जा रही है ऐसे तो ऐसे वापस भी आ रही है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे कहीं पे ये दोनों मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले हैं, पीछे भी कहीं पे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि सामने कहीं नहीं मिलेंगे तो इसलिए हमने इमेजिन कर लिया कि ये भाई साहब पीछे कहीं पे मिलेंगे, वी डू नॉट नो वेयर दे आर गोइंग टू मीट, दे वुड बी ऑलमोस्ट पैरेलल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इमेज, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोलेंगे, ठीक है। बताओ इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड द मिरर फॉर्म हो रही है, देख नहीं पा रहे हम इसको, ठीक है, लेकिन बियॉन्ड द मिरर जो फॉर्म होती है तो इमेज का नेचर क्या हो जाता है, वर्चुअल, ठीक है। तो इमेज आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल। क्या ये समझ में आ रहा है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, तो इमेज आपका क्या हो गया भाई साहब, वर्चुअल, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके। इमेज भाई साहब क्या होगा, हाईली, और इमेज का पोजीशन क्या होगा, तो इमेज का नेचर हो गया, ये देखो दिस विल बी नेचर, द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब, एट व्हाट पॉइंट विड यू फाइंड इट, तो यहां पे हो जाएगा भाई साहब इन्फिनिटी, ठीक है। हम डिफाइन करेंगे पोजीशन को, तो पोजीशन क्या है भाई साहब आपकी, इन्फिनिटी, द इमेज इज बेसिकली गेटिंग फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, क्लियर है, समझ में आ रहा है, इसको हम लोकेट ही नहीं कर सकते, इतनी दूर होगा। और भाई साहब साइज, इमेज के नेचर के बारे में हम हर बार बात करेंगे, इमेज के पोजीशन के बारे में और इमेज के साइज के बारे में। तो साइज यहां पे क्या हो जाएगा, साइज विल बी मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब क्या होता है, मैग्नीफाइड मतलब होता है इमेज का साइज, इमेज का साइज जब एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो, ठीक है। देखो ये प्लेन मिरर नहीं है, प्लेन मिरर में आपने क्या पढ़ा था, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होता है, लेकिन ये प्लेन मिरर नहीं है, यहाँ पे इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, मैग्नीफाइड, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को आपने, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कौन सा मिरर लिया हुआ है, पहली बात यू हैव टेकन अ कॉनकेव मिरर, तो वेयर हैव यू केप्ट द ऑब्जेक्ट पीपल, ऑब्जेक्ट इज केप्ट between pole and focus, so the object is kept between pole and the focus. Where is the image formed people, the image is basically virtual, the image is formed at infinity and the image is highly magnified. Are we clear on this one people, ठीक है। ये सारे थोड़ा सा ये वाला आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सारे तो इजी हैं। देखो अगर आपने भाई साहब पोजीशन, अगर नेचर ऑफ द इमेज, अगर पोजीशन ऑफ द इमेज एट इंफिनिटी, ये क्या है भाई साहब, object is placed at the focus, तो रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। अगर फोकस पे हमने रखा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, सो लेट्स कम एट द फोकस, ठीक है। यहां पे देखो, इसमें देखो अगर हम इनको मिलाने जाएं तो ऐसा नहीं है कि मिल नहीं सकता ये, तो हम लेट्स से वर्चुअली इसको मिलाने जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ये मिल रहा है भाई साहब यहाँ पे, तो ये हो गया आपका क्या, दिस विल बी अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये भाई साहब हो जाएगा आपका एक वर्चुअल इमेज, इसको अगर हमने भाई साहब एक्सटेंड कर दिया तो ये हो गया आपका क्या, एक वर्चुअल इमेज। ये हो गया भाई साहब आपका ऑब्जेक्ट, दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट, और ये हो गया क्या आपका वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड, ठीक है। तो अगर आपको ये सवाल पूछा जाए कि आपको एक ऐसा मिरर यूज करना है जहां पे ऑब्जेक्ट जो है तो मैग्नीफाइड आए, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है, तो आप कौन सा इमेज, कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर, और ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, बिटवीन फोकस एंड द पोल, सो दैट यू गेट अ मैग्नीफाइड इमेज। कहां पे ऐसा करते हैं डॉक्टर्स, देखो अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे ना
तो वो एक मिरर यूज करते हैं, आपके दांतों के अंदर लेकर जाएंगे। अब दांतों के अंदर ऐसे देखना तो मुश्किल है, तो एक मिरर लेकर जाएंगे जिसका वैसा कॉनकेव साइज होगा, और दांत को बराबर अगर इसके फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो बड़े साइज का दांत दिखेगा उसको। क्या ये समझ में आ रहा है? डेंटिस्ट को वैसा वैसा कॉनकेव मिरर वो रखेगा, आपके मुंह के अंदर लेकर जाएगा और उसको पूरा बड़ा साइज का इमेज दिखेगा आपके दांतों का। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो योर टूथ इज बिटवीन पोल एंड फोकस, सो यू विल ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ योर टूथ। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के कौन यूज करते हैं भाई साहब? डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। दिस इज बेसिकली यूज्ड बाय डेंटिस्ट। ठीक है, डेंटिस्ट का मतलब आपके मुंह के अंदर जाकर ऐसे देखना तो वैसा पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक छोटा सा मिरर लेगा, और ये मिरर क्या होगा, आपका कॉनकेव होगा, और वो मिरर को आपके माउथ के अंदर ऐसे लेकर जाएगा और वो ऐसे रखेगा ऐसे इसको, ताकि आपको जिस टूथ को देखना चाह रहा है, ये टूथ कम्स इन बिटवीन द पोल एंड द फोकस, सो ऑब्वियसली इसका एक लार्जर वर्जन उसको देखने को मिलेगा। सो ही विल बी एबल टू फाइंड इट whether it is a cavity issue or whether it needs refilling or whether it needs an operation, whatever। ठीक है, क्लियर है? तो डेंटिस्ट लोग इस तरह के मिरर्स यूज करते हैं। कौन से मिरर्स भाई साहब? कॉनकेव मिरर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? और कहां पे यूज होता होगा, और कहां पे यूज होता होगा बच्चा पाड़ी? शेविंग मिरर्स में यूज होता है। ठीक है, कुछ कुछ शेविंग मिरर्स होते हैं, जैसे आप शेव कर रहे हैं तो ऐसा प्लेन मिरर में थोड़ा सा शायद जिसकी आंखें कमजोर हो ना दिखे, तो शेव करते वक्त, ठीक है, पर्सनल शेविंग मिरर्स, पर्सनल शेविंग मिरर्स। तो अगर आपने अपने गाल को, या मतलब जहां गाल को अगर शेव कर रहे हैं आप, तो अगर आपने गाल को अपने इसके और इसके बीच में रखा, सो इट विल गिव अ मैग्नीफाइड वर्जन। तो आप समझ सकते हैं कि कहां पे आप शेव कर सकते हैं। तो पर्सनल शेविंग मिरर्स में भी ये यूज होता है। ठीक है, छोटे ऐसे मिरर्स होते हैं, वो पैक में कैरी करते हैं, वो उनके साथ जो लोग शेव करते हैं, तो ऐसा रखेंगे कॉनकेव मिरर को, तो दिख जाएगा कि कहाँ पे भाई साहब। कभी हाँ सबमरीन नहीं, सबमरीन में नहीं, सबमरीन में नहीं यूज होगा। सबमरीन में सीधा प्लेन मिरर यूज होता है, सबमरीन में पेरिस्कोप यूज होता है बेसिकली। ठीक है, पेरिस्कोप कैसा होता है? इस तरीके का होता है, देखो पेरिस्कोप ऐसा होता है, तो आपका ऐसा और ऐसा। सबमरीन खुद नहीं दिखना चाहिए, तो ऐसा वैसा ऊपर जाता है, ऊपर का चीज उसको नीचे दिखने मिल जाता है, दैट इज बेसिकली अ पेरिस्कोप। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं जब छोटी चीजों को बड़ी दिखाना है, छोटी चीजों को बड़ा दिखाना है, तब हम इस तरीके की मिरर्स को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे शेविंग कर रहे हैं आप, तो जिनको एकदम क्लीन शेव चाहिए भाई साहब, ठीक है, सो दे विल बेसिकली यूज अ कॉनकेव मिरर। तो ऐसे देखेंगे, अच्छा यहाँ पे दाढ़ी रह गई है, चलो भाई साहब इधर शेव करो। ठीक है, छोटा सा एक दाढ़ी रह गया हो तो, ठीक है, तो वहाँ पे शेव करने के लिए ऐसा करते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। पहला हमारा पोजिशन क्या हो गया? पहला हमारा पोजिशन बेसिकली हो गया, तो इट इज फॉर्म्ड, ये इन्फिनिटी नहीं होगा, इसको हमको बेसिकली बियॉन्ड पोजिशन बियॉन्ड द मिरर, तो ये बियॉन्ड द मिरर होगा। पोजिशन विल बी बियॉन्ड द मिरर। नेचर क्या होगा? क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर हो रहा है, इसलिए नेचर इस इमेज का क्या हो जाएगा? वर्चुअल। ठीक है, पोजिशन होगा बियॉन्ड द मिरर और ये मैग्नीफाइड होगा, बड़ा सा इमेज दिखेगा आपको। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल? ओके, बहुत बढ़िया ना भाई साहब। ठीक है, अभी हम आएंगे भाई साहब, ऑब्जेक्ट अगर फोकस में हम रख देते हैं, ठीक है, तो रियल इमेज फॉर्म होगा इन्वर्टेड। अच्छा, एक और चीज भाई साहब, यहाँ पे आपका जो नेचर होगा वहां पे मैग्नीफाइड भी लिखेंगे, और देखो मैग्नीफाइड है, ये इसका टेल, ये इसका मुंडी, ये इसका टेल, ये इसका मुंडी, ये इसका टेल, इसका मुंडी, तो इसका मतलब क्या हो गया? अपसाइड डाउन नहीं है इमेज, तो इसको इस टाइप के इमेज को हम क्या बोलेंगे? इरेक्ट। ठीक है, दिस इज नोन एज इरेक्ट। ठीक है, और अपराइट भी बोल सकते हैं, अपराइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इरेक्ट एंड अपराइट, ये सारी चीजें आपको लिखने पड़ेंगी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, सो वर्चुअल इमेज है, क्यों? क्योंकि इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? बियॉन्ड द मिरर, तो इसीलिए भाई साहब ये क्या हो जाएगा? वर्चुअल। द रीजन व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ वर्चुअल इमेज इज बिकॉज द इमेज इज गेटिंग फॉर्म बियॉन्ड द मिरर। ठीक है, पोजीशन कहां है भाई साहब? आपका बिहाइंड द मिरर है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और भाई साहब मैग्नीफाइड है, दिस इज बेसिकली मैग्नीफाइड। इरेक्ट है इमेज और अपराइट है, दिस इज बेसिकली इरेक्ट एंड अपराइट। ठीक है, और किस टाइप का मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, इमेज साइज आपके ऑब्जेक्ट साइज से बड़ा है। क्लियर 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 पीपल? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो आपका ये हो गया क्या? दिस इज बेसिकली इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द पोल एंड द फोकस। ठीक है, सो अगर ऑब्जेक्ट को आपने बिटवीन द पोल एंड फोकस रखा है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन एज एन इमेज। सो यहां पे हम कॉनकेव मिरर्स को
अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है भाई साहब, अगर कॉनकेव मिरर्स को हम यूज करना चाहते हैं टू गेट अ हाईली मैग्नीफाइड इमेज, अगर हमको चाहिए क्या, किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम कॉनकेव मिरर को कहाँ रखेंगे भाई साहब, कॉनकेव मिरर इज प्लेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर को हम कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट फोकस, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे भाई साहब, फोकस एंड पोल के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस और पोल के बीच में, तो हमको एक बड़ा सा इमेज दिख जाएगा इसका। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, अगर हमने यहां पे रखा फोकस को तो क्या हो जाएगा, रियल इमेज फॉर्म होगा, मतलब अब की बार इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, ठीक है। इन्वर्टेड होगा, देखो इन्वर्टेड, उल्टम पुल्टम होगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर, और ऑब्जेक्ट को भाई साहब कहां रखा जा रहा है, एट फोकस, ठीक है। तो फोकस पे रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं कहां पे, फोकस पे। ये सारों पे सवाल बनेंगे भाई साहब, ठीक है। प्लीज बी अवेयर दैट देयर विल बी, इस पे सब पे सवाल ही बनेंगे आपके, ठीक है। ओके, तो आपने पहले ड्रॉ कर लिया भाई साहब प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक मस्त सा आपने ड्रॉ कर दिया क्या, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर अगर आपने ड्रॉ किया है तो कॉनकेव मिरर के साथ साथ ये हो जाएगा इसका पोल, ये हो जाएगा भाई साहब इसका फोकस, ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे रख रहे हैं आप ऑब्जेक्ट को, एट फोकस, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सक्षम बहुत उबासी आ रही है बेटा, ठीक है। तो इस फोकस में हमने रखा इसको, क्लियर है। अभी हम फिर से रूल्स अप्लाई करेंगे। पहला रूल क्या है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। तो एक मन गढ़ंत सा हम रे ऑफ लाइट उठाएंगे, इसके मुंडी से एक रे ऑफ लाइट निकल रहा है, अ रे ऑफ लाइट, क्या ये रे ऑफ लाइट भाई साहब आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस से, ठीक है। ये जा रहा है भाई साहब आपके फोकस से, क्लियर पीपल हम, ठीक है। दूसरा रे ऑफ लाइट कहां से उठाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट नहीं आ रहा है, इधर से आ रहा है, लेकिन हम ऐसा दिखाएंगे कि भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने एक रे को जोड़ दिया इसके मुंडी से पास होता हुआ, और लेट से ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अरे बोलो ना भाई साहब, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट एक्चुअली निकल रहा है भाई साहब यहाँ से, ठीक है। तो हमने दूसरा रूल क्या पढ़ा था, अ रे ऑफ लाइट which basically passes through the center of curvature after reflection is retracing its path back along the same line। तो ये रे ऑफ लाइट है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब, रे ऑफ लाइट ऐसे ही जाएगा, ये है कि नहीं, क्लियर है। अभी तुमको देखो भाई साहब, ये वाला रे ऑफ लाइट इसका मतलब ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, ये ठीक है। अभी भाई साहब ये रे ऑफ लाइट है, समझ में आ रही है, उसी रास्ते वापस, ये दोनों भाई साहब आपस में कभी मिलने ही नहीं वाले, ठीक है। और तुमको क्या दिख रहा है, देखो इसकी मुंडी से आ जाना ये रे, तो मुंडी का रे ये वाला, ठीक है, मुंडी का रे ये वाला, टेल का रे ये वाला भाई साहब, तो इसका मतलब क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज आएगा, मतलब उल्टम पुल्टम इमेज आएगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो इमेज ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात बताइए, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बियॉन्ड द मिरर और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, भाई साहब इधर फॉर्म हो रहा है, तो इमेज को क्या बोलेंगे हम, रियल, ठीक है। इमेज इज रियल, इमेज का नेचर क्या हो जाएगा भाई साहब, इमेज का नेचर आपका हो जाएगा रियल। वाई वाई वाई, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट, it is formed in front of the mirror. Image is real because it is formed in front of the mirror. Are we clear? क्लियर है। और क्या बोल सकते हैं भाई साहब इमेज के बारे में, ठीक है। इमेज आपका भाई साहब और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनवर्टेड, इमेज इज इनवर्टेड, ठीक है, मतलब अपसाइड डाउन, इमेज इज अपसाइड डाउन, इमेज इज अपसाइड डाउन, इमेज इज इन्वर्टेड और अपसाइड डाउन। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। इमेज इरेक्ट नहीं है, पिछली बार क्या था भाई साहब, इमेज अपराइट या इरेक्ट था, देखा क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या था, देखो इमेज क्या था, इरेक्ट या अपराइट, यहाँ पे भाई साहब इमेज क्या है,
इन्वर्टेड है, द इमेज इज बेसिकली इन्वर्टेड, समझम, उल्टम पुल्टम, ठीक है। ओके, अभी भाई साहब हम इसके मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, मतलब हम क्या किसकी बात करेंगे यहाँ पे, साइज की बात करेंगे, ठीक है। तो साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड है ये, ठीक है, दिस इज बेसिकली मैग्नीफाइड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने एक कॉनकेव मिरर के फोकस पे रख दिया तो इस तरीके का इमेज आपको देखने को मिलेगा, दिस इज द इमेज दैट यू आर गोइंग टू सी। नींद आ रही है ना भाई साहब, ठीक है। तो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। सो और आपका कहां पे होगा भाई साहब, पोजीशन कहां पे होगी, ठीक है, जैसे पिछली बार हमने पोजीशन डिटरमिन किया था, तो पोजीशन कहां पे होगी इसकी, ठीक है। सो वेयर विल बी द पोजीशन ऑफ दिस इमेज ऑफ पीपल, द पोजीशन विल बी एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों बोल रहे हैं भाई साहब, क्योंकि ये दो जो रेज हैं जिनसे जिनके मिलाव से आपका इमेज बनने वाला, वो तो आपस में मिल ही नहीं रहे हैं, वो तो पैरेलल चल रहे हैं। तो दो पैरेलल रेज कहां पे मिलेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेंगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं इमेज की पोजीशन कहां पे है, इन्फिनिटी पे। हाईली मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है और रियल है, क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। इससे दूसरे वाले को कंपेयर करो, देखो ये कहां पे मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं कहां पे, बियॉन्ड द मिरर। तो आपका पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन हियर इज बियॉन्ड द मिरर, हियर द पोजीशन इज बियॉन्ड द मिरर, ठीक है। आपका इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर हो रहा है। जब भी बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है तो वर्चुअल इमेज होगा। whenever the image is formed behind the mirror it will be a virtual image, ठीक है। और क्या है, हाईली मैग्नीफाइड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल, तुम लोग में कौन बोले, देखो ये जो डायग्राम्स बनाओगे ना, इसमें हाँ तुमको स्केल यूज करना पड़ेगा, लेकिन कॉनकेव मिरर के लिए एकदम से प्रोटेक्टर यूज करके सर्कल बनाना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ पोजीशंस तुम्हारे सही होने चाहिए। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ से हो गया, रे सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन था ना, फोकस पे ले लिया हमने, फोकस पे कंसिडर किया है ना अभी हमारा, बिटवीन ये वाला लिया ही नहीं, क्या फालतूगिरी, डायग्राम किसी और चीज का दिया हुआ है। ओके, सो यहां पे देखो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट भाई साहब किधर है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ही दी जाएगी आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन है कहां पे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब फटाफट से भाई साहब इसका इमेज बनाते हैं। पहले फटाफट क्या करेंगे हम, पहले बनाएंगे भाई साहब प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हम क्या बनाएंगे, एक स्फेरिकल पोर्शन बनाएंगे, ठीक है। तो ये स्फेरिकल पोर्शन हो गया, ये हो गया आपके पोल्स, ठीक है। ये हो गया क्या, फोकस, ये हो गया क्या आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्लियर है। अभी ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, आपने यहां पे देख लिया, यहां पे जब आपने रखा था तो ऑब्जेक्ट का आपको वर्चुअल इमेज मिला था, मैग्नीफाइड मिला था। जब आपने फोकस पे रखा तो मैग्नीफाइड मिला था और रियल मिला था ऑब्जेक्ट का।
अभी आप कहाँ पे रखोगे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। सो लेट्स से वी हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट हियर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, ओके। सो वही हमारे रूल्स रहेंगे, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus. A ray of light which is parallel to the principal axis, a ray of light parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. दूसरा हमारा रूल क्या हो जाएगा बोलो, a ray of light passing through the focus, अगर फोकस से हमने किसी रे ऑफ लाइट को पास किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पे ये दोनों मिल रहे हो, दोनों ही रेस कहां से आए, मुंडी से आए, और रिफ्लेक्शन के बाद यहां पे कन्वर्ज हो रहे हैं, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, इसको हम इन्वर्टेड इमेज ले लेंगे। सो दिस विल बी एन इन्वर्टेड इमेज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता हूं, ठीक है। ये आपका इन्वर्टेड इमेज हो गया, क्लियर, ठीक है। ये हो जाएगा इमेज, तो आपका इधर ये वाला हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज। तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक बताएं भाई साहब, अरे बोलिए ना बोलिए, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे। पहली बात तो भाई साहब इमेज कहाँ बन रहा है, सामने मिरर के पीछे, सामने बन रहा है, अगर सामने बन रहा है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, इट विल बी रियल, ठीक है। तो इमेज आपका क्या हो जाएगा, रियल। वाई, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और बोलो भाई साहब पोजीशन कहां पे है, पोजीशन इमेज की, तो ये हो गया इसका नेचर, है ना। और बोलो भाई साहब पोजीशन इमेज की कहां पे है, बोलो ना, किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड आ रहा है ना। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ये, ठीक है, ओके। मुझे बताओ अभी साइज देखो ऑब्जेक्ट का और इमेज का, कौन बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, विच वन इज ग्रेटर, इमेज का। तो हम यहाँ पे साइज की बात करते हैं, ठीक है। साइज, जब आपका इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड। इमेज आपका क्या है भाई साहब, मैग्नीफाइड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइज ऑफ इमेज इज बेसिकली ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का नेचर, पोजीशन और साइज, और क्या है भाई साहब, व्हाट एल्स कैन बी डिस्कस हियर। तो नेचर हो गया आपका क्या, ओके, मैग्नीफाइड। और दूसरा क्या है नेचर में, बोलो, अपराइट नहीं है ये, देखो ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज कैसा है, उल्टा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज इन्वर्टेड, ठीक है। इमेज का दूसरा भाई साहब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दिस इज इन्वर्टेड। सो इमेज आपका हो गया भाई साहब रियल, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज हो गया भाई साहब आपका इन्वर्टेड, बिकॉज इट इज अपसाइड डाउन, ठीक है। इन्वर्टेड, या हम इसको बोलते हैं अपसाइड डाउन, दिस इज अपसाइड डाउन, ठीक है। और क्या हो जाएगा बोलो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, दिस इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इमेज क्या है भाई साहब आपका, हाई मैग्नीफाइड है, ठीक है। दिस इज बेसिकली मैग्नीफाइड। क्लियर है पीपल, हम ओके 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 ओके। चलिए भाई साहब अभी हम आते हैं, अभी हम कहां पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, ओके ओके। ये इंटरेस्टिंग है भाई साहब। ऑब्जेक्ट को हम कहां रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है कहां पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट्स से ये हो गया भाई साहब आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज बेसिकली योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये हो गया भाई साहब आपका मिरर, ठीक है, ये हो गया आपका मिरर। यहाँ पे आपने ले लिया क्या, फोकस, ये पे हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अभी आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो अगेन यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है। कैसे करेंगे आप, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक रे ऑफ लाइट ले लिया, इसके मुंडी से निकलता हुआ
आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, क्लियर है? अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। दूसरा क्या करेंगे आप भाई साहब? अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल be parallel to principal axis. A ray of light which passes through the focus after reflection will be parallel to the principal axis. इन दोनों को जोड़ देंगे अगर हम, ठीक है, तो हमारा भाई साहब यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस विल बी एकदम उसी पॉइंट पे। ठीक है, तो आपका इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है बच्चा पार्टी? ठीक है, इमेज आपका क्या हो जाएगा? बोलो, इमेज का पोजीशन बताओ पहले। इमेज का पोजीशन इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां पे ऑब्जेक्ट है। दिस इज बेसिकली व्हाट? द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? दिस विल बी द इमेज। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट एंड दिस विल बी द इमेज। तो इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑल्सो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर 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 पीपल हम? ठीक है, ओके। अभी हम बात करेंगे भाई साहब इमेज के और नेचर के बारे में। ठीक है, नेचर क्या है? कहां पे आ रहा है ये? वेयर इज इट कमिंग पीपल? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो किस टाइप का इमेज आ जाएगा? रियल। ठीक है, सो दिस विल बी अ रियल इमेज। व्हाई? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर है? इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और क्या है बोलो भाई साहब? ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है, इमेज कैसा बना है? ऐसा, तो मतलब क्या हो जाएगा? ये इन्वर्टेड। ठीक है, तो इमेज के नेचर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड है क्यों? क्योंकि ये भाई साहब है क्या? अपसाइड डाउन। ये भाई साहब है आपका क्या? अपसाइड डाउन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ओके, साइज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, जितने साइज का ये ऑब्जेक्ट है उतने साइज का ये इमेज है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? सेम साइज। ठीक है, image is of the same size, image is of the same size as the object। image भाई साहब आपका सेम साइज का है, किसका? as the object। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता हम? ठीक है, ओके, सो दीज आर ओके। अभी हम कहां पे ले जाएंगे भाई साहब ऑब्जेक्ट को? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हम अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले जाएंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? देखो, अगर बियॉन्ड सेंटर क्या है भाई साहब? रियल बनाया है इसके लिए और दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखो क्या हो जाएगा? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल इमेज फॉर्म हुआ है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कहां पे फॉर्म हुआ ये? at the center of curvature only, beyond the center of curvature। चलिए भाई साहब इसको देख लेते हैं। beyond the center of curvature, object is placed beyond center of curvature। ठीक है, object is placed beyond center of curvature। तो हम भाई साहब फटाफट से बनाते हैं। यहाँ पे पहले क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस वुड बी आवर प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा भाई साहब एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, सो प्रिंसिपल एक्सिस पे ये बन गया आपका भाई साहब क्या? कॉनकेव मिरर। ठीक है, ओके, फटाफट से यहाँ पे डालेंगे। ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका भाई साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हमने कोई लिया हुआ है ऑब्जेक्ट, इसको हमने रखा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ओके, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही रूल्स लगाएंगे। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, क्लियरम 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 पीपलम? ठीक है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। दूसरा आप क्या लगा सकते हैं? आप यहाँ पे लगा लो भाई साहब, अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द फोकस, अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। है ना, यहाँ पे दो रेज मुंडी से आते हुए मिल रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये भी आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और ये भी आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अभी भाई साहब हम इसका क्या करेंगे? दिस विल बी
द इमेज दैट इज फॉर्म। ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम द इमेज। ठीक है, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट एंड दिस विल बिकम द इमेज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता, समझ में आता। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका इमेज। ठीक है, ओके। सो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है अपने, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को आपने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है। अभी इमेज के बारे में आपको बातें बतानी है। ठीक है, इमेज का पोजीशन बताओ पहले भाई साहब, क्या हो जाएगा, इमेज का पोजीशन बताओ क्या हो जाएगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, इमेज इज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, ओके। और बताओ भाई साहब, इमेज के बारे में क्या बता सकते हो, इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज इज, ये भाई साहब आपका रियल हो जाएगा, दिस विल बी रियल, और क्या हो जाएगा, एंड इन्वर्टेड है, रियल है और क्या है भाई साहब आपका, इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। और बताओ भाई साहब नेचर क्या बोल सकते हैं, अभी हम इसको क्या बोल सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। अभी साइज बताओ भाई साहब, ये क्या मैग्नीफाइड है, नहीं, छोटा हो गया है, ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। ठीक है, दिस इज नोन एज डिमिनिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इमेज साइज इज लेसर देन ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, इमेज साइज इज लेसर देन ऑब्जेक्ट साइज। क्या ये समझ में आ रहा है? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके। अब बताओ भाई साहब और कहाँ रखेंगे, अभी हम लास्ट वाला लेंगे, यहाँ पे कहाँ पे रख रहे हैं भाई साहब, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर हम रखते हैं भाई साहब, तो पहले हम बना लेते हैं भाई साहब, ये भाई साहब आपका बन गया एक कॉनकेव मिरर। इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब बहुत दूर। ठीक है, लेट्स से ये हो गया आपका फोकस। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर से भाई साहब कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है। ठीक है, ऐसे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं, ये कहाँ पे कन्वर्ज होंगे, दे विल ऑलवेज कन्वर्ज इन द फोकल प्लेन, कहीं ना कहीं फोकस पे ही ये कन्वर्ज होंगे। फोकल, ये आपका जो फोकस रहेगा इधर ही कन्वर्ज होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली फोकल प्लेन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ पे है भाई साहब, इन्फिनिटी में। इमेज कहाँ पे बनेगा इसका, ये फोकल प्लेन पे बनेगा। देखो ये फोकल प्लेन है, इस पूरे प्लेन पे कहीं पे भी अगर इमेज बनता है तो हम बोलते हैं इसको फोकल प्लेन, ये फोकस का प्लेन है। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज पोजीशन भाई साहब क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी फोकल प्लेन। ठीक है, ये हो जाएगा इमेज कहाँ पे बन रहा है भाई साहब, फोकल प्लेन पे। ठीक है, और नेचर बताओ भाई साहब इसका क्या हो जाएगा, नेचर रियल है कि नहीं, क्योंकि मिरर के सामने बन रहा है। ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज के बारे में बताओ, साइज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं एकदम पॉइंट साइज हो गया ये। ठीक है, इट इज हाईली डिमिनिश्ड मतलब दिस इज ऑलमोस्ट पॉइंट साइज। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड मतलब एकदम पॉइंट साइज हो गया। ठीक है, सो दैट इज द इन्फिनिटी। इसीलिए देखो सोलर पैनल्स जो होते हैं वो ऐसे कर्व्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सन के रेज को भाई साहब, अगर आप समझ लो ऑमलेट तलना चाहते हैं, ऑमलेट, ठीक है, आपने अंडे को फोड़ दिया भाई साहब, तवे पे रख दिया, और किसी कॉनकेव मिरर को ले लीजिए, उसको ऐसे रखिए कि इसका इधर, और उसके जस्ट फोकल प्लेन पे आप उस ऑमलेट को रख मतलब उस अंडे को रखेंगे, उसका ऑमलेट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरे सन के हीट को ये क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। यहाँ पे बराबर फोकल प्लेन पे अगर आपने किसी माचिस के तीली को रख दी, उसकी मुंडी, वो अपने आप जल जाएगी, इट विल स्टार्ट बर्निंग ऑन इट्स ओन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो रे है वो कन्वर्ज हो रहा है, दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको
हल्के में मत लीजिए, इसमें क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, देयर विल बी क्वेश्चंस फॉर्म्ड ऑन दिस, ठीक है, और क्वेश्चन में वही फंडामेंटल, अरे यार फंडामेंटल फॉर्मूला ही लग रहा है, दैट सेम फंडामेंटल फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो भाई साहब ये हो गया सारे, तो इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, तो आपने देख लिया ये कॉन्केव मिरर के केसेस थे। नाउ विल टॉक अबाउट इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर्स, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में ज्यादा केसेस नहीं है, आपको यहाँ पे देखो, क्योंकि आपका पोल इधर है, फोकस इधर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एक इमेज रखेंगे, ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इंसिडेंट रे बी डी, ठीक है, ये आपका भाई समझ लो बी डी है, इंसिडेंट रे बी डी जो पास हो रहा है लेट्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी लाइन पे ये वापस आएगा, ये आपका रे है, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, तो इन दोनों का भाई साहब मर्जर कहाँ पे हो रहा है, ये एक रे है जिसका इधर और इधर, तो दिस विल बी अ हाईली डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। तो टू रेज अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड लाइज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। सो कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस है, कॉन्केव मिरर में इतने सारे केसेस थे आपके, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर अगर आप देखने जाओगे तो एक ही केस है, तो लेट्स से आपका कॉन्वेक्स मिरर है और यहाँ पे आपने क्या ड्रॉ कर लिया भाई साहब, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे लेट्स से ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे आपका क्या है भाई साहब, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, क्लियर है। ऑब्वियस सी बात है कि इसका फोकस भी इधर होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पे ही कहीं पे होगा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं पे इस पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो इट इज केप्ट एट एनी पॉइंट ऑन द हियर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बोलो, ये गया टैव, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी अपीयरिंग टू बी पासिंग through the focus, a ray of light which is parallel to the principal axis, ये एक ray of light है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपीयर करेगा भाई साहब फोकस से पास होता हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ से अपीयर करेगा, दिस विल बी अपीयरिंग टू बी पासिंग थ्रू द फोकस। और दूसरा क्या है भाई साहब, अ रे ऑफ लाइट विच बेसिकली ऐसा अगर लगता है कि एक रे ऑफ लाइट है और लेट्स से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक टच हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, एक्चुअली इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता ये, तो ये जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वैसा वापस जाएगा, ठीक है, जिस रास्ते आया, तो ये दोनों कहाँ पे भी, ये आपके वर्चुअल रेज हैं, डॉटेड रेज में आपको दिखाना पड़ेगा, तो ये दोनों बेसिकली कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा भाई साहब इमेज, ठीक है, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट, दिस इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी द इमेज, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट, तो ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के सामने, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट, ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है बोलो, इमेज, अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब, इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, तो ये इमेज का नेचर क्या हो जाएगा बोलो, वर्चुअल, ठीक है, द इमेज इज बिटवीन, तो पोजीशन अगर हम बताएंगे, इमेज की पोजीशन कहाँ पे हो जाएगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, और क्या है बोलो, इमेज इज वर्चुअल एज इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, एज इट्स फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, दिस इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और क्या बोल सकते हैं भाई साहब, ठीक है, तो ये वर्चुअल हो गया, इमेज इज वर्चुअल एज इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और क्या है बोलो, इसका साइज देखो, इसका साइज देखो भाई साहब, क्या है, डिमिनिश्ड, ठीक है, तो दिस विल बी डिमिनिश्ड, तो ये हो गया आपका साइज वाइज क्या हो जाएगा, ये डिमिनिश्ड, ठीक है। गाड़ियों में जो आपके रियर मिरर्स होते हैं, मतलब जो गाड़ियों में जब आप साइड मिरर्स होते हैं या पीछे जो मिरर्स होते हैं, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ देख सकें, एक ही गाड़ी दिखेगी तो नहीं चलेगा ना, पूरा रास्ता दिखना चाहिए पीछे, है ना, तो मतलब क्या होगा, एक बड़ी गाड़ी का छोटा इमेज आपको दिखेगा ताकि उस स्पेस में और गाड़ियों के इमेज आपको दिख सके। तो गाड़ियों में, ठीक है, रियर व्यू मिरर्स जो होते हैं, ठीक है, रियर व्यू मिरर्स
इन रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, ये आपके क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, ठीक है। इसको लगाने का मतलब क्या है कि आप कॉन्वेक्स मिरर में बहुत ज्यादा स्पेस में रास्ते में क्या चल रहा है उसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही इमेज आया और पूरा वो एक ट्रक आ रहा है भाई साहब, लेकिन ट्रक के साथ इधर भाई साहब कार भी आ रहा है, एक और भाई साहब बाइक भी आ रहा है, ये सब आप नहीं देख पाएंगे, है ना। तो इसीलिए ट्रक के इमेज को अगर हमने कंडेंस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे वही हो रहा है, देखो ये ऑब्जेक्ट का इमेज जो है तो छोटा हो गया है, तो मोर ऑब्जेक्ट्स कैन बी अकोमोडेटेड, ठीक है, ज्यादा इमेजेस को हम देख पाएंगे, ठीक है। सो रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, ठीक है, इज बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ अ मिरर, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आपका एक ही केस है, ठीक है, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी वन केस ओनली इन कॉन्वेक्स मिरर। तो आपका देखो ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इंसिडेंट रे बी डी, तो ये बी डी है भाई साहब, ऐसे आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि भाई साहब अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया तो इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। हमको मालूम है कि अ रे ऑफ लाइट which passes through the center of curvature or appears to pass through the center of curvature is reflected back along the same path. So this is basically appearing to pass through the center of curvature, hence it is reflected along the same path. A ray of light which is parallel to the principal axis after reflection appears to pass through the focus. ये भाई साहब appear कर रहा है focus से पास होते हुए, ये दोनों भी भाई साहब आपके रेस को अगर आप मीट कराओगे तो यहाँ पे मीट हो रहा है, तो आपका किस टाइप का इमेज बन गया, ये वर्चुअल इमेज, ठीक है, विच इज लोकेटेड बिहाइंड द मिरर। और किस टाइप का इमेज, अच्छा यहाँ पे और एक चीज जो मैंने बोलना भूल गया कि इमेज इज वर्चुअल एज इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, और इमेज क्या है आपका, अपराइट या इरेक्ट है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अपराइट एंड इरेक्ट, ठीक है, अपराइट एंड इरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपराइट एंड इरेक्ट, क्योंकि जो गाड़ियों को आप देखेंगे उल्टा नहीं देख सकते ना, ठीक है, तो अपराइट एंड इरेक्ट, ये अपराइट और इरेक्ट बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, अपराइट और इरेक्ट, तो अपराइट और इरेक्ट है एंड ऑफ अ डिमिनिश्ड साइज, ऑफ अ मच डिमिनिश्ड साइज। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सब भाई साहब यहाँ पे सो रहे हैं, स्टेट बोर्ड से मेरे को बहुत शिकायत है भाई, आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपका मैं एक वीडियो पोस्ट करता हूँ ना, उसमें 3 या 4 व्यूज आते हैं, आप ना यहाँ पे ध्यान देते हैं ना घर पे, कुछ भी नहीं होता है, एब्सोल्युटली नथिंग, ना कोई नोट्स बनता है ना कुछ, और ये बहुत अलार्मिंग है, दिस इज रियली अलार्मिंग, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये चैप्टर आपका हर एक चैप्टर, आप जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे आपके साइंस में हैं, मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट 80 to 90% आपका भाई साहब 10th में रहेगा, इन कंटिन्यूशन रहेगा। यहाँ पे आपका बेस क्लियर नहीं हुआ तो वहाँ पे आप फंसेंगे। ये वाला जो चैप्टर है वो 10th को सीबीएसई में है, सीबीएसई में 10th में है ये वाला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से डील करें। लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं समझेंगे तो रिफ्रैक्शन भी समझ में नहीं आएगा। बहुत ही उदास चेहरे मेरे को यहाँ पे दिखते हैं, आधे सोए हुए हैं, अरे क्या चल रहा है वैसा, ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही घर चले जाएंगे, और रोज का किस्सा है ये। प्लीज पीपल गियर अप, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी लाइक डिगिंग योर ओन ग्रेव्स, आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। आपके एटीट्यूड से मुझे पढ़ाने का जी नहीं करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीबीएसई वाले बहुत तेज हैं, लेकिन एटलीस्ट वो यहाँ पे अटेंशन पे कर रहे हैं, उनमें 80 to 90% लोग अटेंशन यहाँ पे करते हैं। आप लोग बिल्कुल भी ब्लैंक हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, लेकिन इस तरह से ये इसमें से एक सवाल बनेगा ही बनेगा। हेल्प मी हेल्प यू, दैट इज माई मोटो। पे भाई साहब आप बताएं आपका कैसा हेल्प किया जाए। रिजल्ट्स आपको आपके सामने दिख रहे हैं, राइट, सबके रिजल्ट्स मैंने जो यहाँ पे पेपर्स कंडक्ट किए हुए उसके आजू बाजू के मार्क्स नहीं हैं आपके, मतलब जो स्कूल में आपको मार्क्स मिल रहे हैं जो यहाँ पे मार्क्स मिल रहे हैं ऑलमोस्ट पैरेलली चल रहे हैं। सो अंडरस्टैंड कि देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मेरे पास 5 मिलेगा और स्कूल में भाई साहब 40/40 मिल जाएंगे। अगर ऐसा होता तो बहुत बढ़िया है भाई साहब, तो मैं 5 की जगह पे 4 देता आप, ताकि स्कूल में 41 मिले, है ना, अगर पॉसिबल होता, ठीक है। लेकिन नहीं मिल रहा है ना, जो मेरे पास मार्क्स मिल रहे हैं आपको वही वहाँ पे भी मिल रहे हैं, तो इसका मतलब एकदम मतलब एफर्ट्स आपके 0 या नेगेटिव बोल सकता हूँ मैं हैं। और आपके चेहरों से ही ऐसा लग रहा है, आपके चेहरों से ऐसा लग रहा है एकदम थियोरेटिकली पढ़ा रहा हूँ मैं इसको, विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडल्जेंस फ्रॉम योर एंड, एंड दिस इज अ सीरियस स्टेट ऑफ अफेयर्स पीपल। यू आर गोइंग टू फॉल ऑन योर फेसेस, आई एम टेलिंग यू। आप अगर अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते
माना कि भाई साहब आपके स्कूल में बहुत नोट्स दिया जाता है, माना कि भाई साहब स्कूल का आवर्स लॉन्ग है, लेकिन उसमें से ही जो टॉपर होता है वही होता है ना भाई साहब, वो टॉप करता ही है, उसको ये सब बहाने नहीं सूझते हैं। मतलब आप अपनी चीज़ों को अगर स्ट्रैटेजाइज नहीं कर पा रहे हैं तो एक बहानों का भंडारी बन जाएंगे, हर चीज़ आपके लिए बहाना बन जाएगी। मुझे बहुत नोट्स मिले हैं, ये करना है, वो करना है, ये जर्नल पूरा करना है, वो करना है, यही सब चलता रहेगा। 10th में तो जाकर भाई साहब आपको जर्नल लिख लें जिसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, तो यही सब चलता रहेगा आपका। कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने की जब तक आपकी फितरत नहीं होगी, कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने की, ठीक है, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप नहीं कर सकते। और समझने की फितरत को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वरना आपके लिए साइंस और मैथ्स तो कम से कम आउट ऑफ रीच रहेगा। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। साइंस और मैथ्स आपका आउट ऑफ रीच ही रहेगा पीपल। दिस इज गोइंग टू बी अ मॉन्स्टर फॉर यू फॉर एवर। आपको लगता है 10th के बाद आप अपना साइंस और मैथ्स से पल्ला झाड़ सकते हैं, कॉमर्स लेकर बैठ जाएंगे, फिर भी आपको चैलेंजेस रहेंगे, फिर भी आपको चैलेंजेस रहेंगे। कॉमर्स में भी मैथ्स आता है, ठीक है, उसमें भी चैलेंजेस रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब दैट वुड बी अ केक वॉक फॉर यू। सो जिस चीज़ को आप निभा रहे हैं उसको थोड़ा सा एफर्ट डालिए भाई साहब, क्योंकि आपका यहाँ पे अटेंशन लेवल्स नेगेटिव में है, एंड दैट्स रियली अलार्मिंग, रियली अलार्मिंग। ओके, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे देखो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस क्या होता है, ठीक है। अ बीम ऑफ लाइट इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। तो अगर भाई साहब ऐसा है सोर्स ऑफ लाइट और ये ऐसा फैल रहा है तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट। और अगर भाई साहब ऐसा एक जगह पे कन्वर्ज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट, ठीक है। सो अ बीम ऑफ लाइट इज सेड टू बी डाइवर्जेंट व्हेन इट स्प्रेड्स लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। अ बीम ऑफ लाइट इज सेड टू बी कन्वर्जेंट व्हेन ऑल द रेज ऑफ लाइट आर कन्वर्जिंग एट वन पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पे भाई साहब कन्वर्ज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइट एमिटेड बाय अ कैंडल और अ बल्ब फॉर्म्स डाइवर्जेंट बीम्स, ठीक है। अ बीम ऑफ लाइट इज सेड टू बी कन्वर्जेंट व्हेन इट फोकसेस। तो सारा लाइट एक जगह पे अगर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट, एक जगह से अगर लाइट फैल रहा है तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट, ठीक है। दिस इज बेसिकली नोन एज, सो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ कॉन्केव सरफेस आर ऑलवेज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो कॉन्केव सरफेस से, तो अगर समझ लो ये आपका कॉन्केव सरफेस है, कॉन्केव मिरर है, वहां पे रेज ऑफ लाइट फॉलो रहे तो हमेशा भाई साहब कन्वर्ज हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम उसको कॉन्केव मिरर बोल रहे हैं और कन्वर्जेंट, ठीक है। कितने लोग एब्सेंट है? 4-5 लोग एब्सेंट है। आप मुझे बताइए, अमित चौहान हो गया या महबूब आलम हो गया, क्या आज जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा ये घर पे जाकर देखेंगे? नहीं देखेंगे। और ये इनकी कहानी नहीं है, आपकी कहानी है, आप भी यही करते हैं, है ना। लेट्स बी प्रैक्टिकल, आप भी यही करते हैं। जो मिस हो गया वो मिस हो गया, मतलब उसको कैसे भी करके उस गैप को पूरा नहीं करना है। आप कल को आएंगे, मैं बोलूँगा भाई साहब अगर फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट तो कहाँ पे इमेज बनेगा, वैसे डम रहेंगे आप, कुछ बोलेंगे नहीं समझ में आएगा। मैं इनका एग्जाम्पल या इनका नाम नहीं ले रहा हूँ, चलिए आज के दिन में ये एब्सेंट है, आज को अगर आप भी एब्सेंट होते तो आपकी भी फितरत वही होती, आपकी भी फितरत वही होती। नोट्स भेजा जा रहा है भाई साहब, वीडियो लेक्चर्स भेजे जा रहे हैं, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। 15-20 लोगों का बैच है आपका इन स्टेट बोर्ड, मेरे को व्यूज़ 4-5 आ रहे हैं तो इसका मतलब सिग्निफिकेंटली कोई नहीं देखता, इट्स जस्ट गेटिंग अपलोडेड देयर। और मुझे यहाँ पे व्यूज़ बढ़ाने के लिए बात नहीं करनी है, मुझे यहाँ पे बात करनी है कि आपका पढ़ाई कहाँ है, वेयर इज़ द क्रीम ऑफ योर स्टडीज़, वेयर इज़ द क्रीम ऑफ योर स्टडीज़, कहाँ किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं भाई साहब, आप बताइए मुझे, किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है आपका, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस का, प्रॉब्लम्स लगाने का, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज देयर फ्रॉम योर एंड। या क्या लगता है बुक में जो पीछे के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भाई साहब रट लेंगे, भाई साहब नहीं पार हो जाएगी, शायद हो जाए, लेकिन वही 60-70%, उससे ज़्यादा नहीं। इफ कॉन्सेप्ट ग्रास्पिंग इज नॉट समथिंग दैट यू आर इनकलकेटिंग इन योर सेल्फ, यू आर हेडिंग फॉर अ डिजास्टर। और इसको मैं साफ सीधे लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, दिख ही रहा है भाई साहब, डिजास्टर हो ही रहा है। आप एक्सीडेंट से मीट करेंगे ही करेंगे, यू आर गोइंग टू मीट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है। और इसका पल्ला किसी के पास नहीं जाएगा। मेरे को टीचर ने स्कूल में नहीं पढ़ाया, ये आप नहीं बोल सकते। मेरे को भाई साहब क्लास में समझ में नहीं आया, ये भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि जब समझना था तब आपने प्रयास नहीं किया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप
क्या मतलब सिंगदाना बेच रहे थे जो पूछा नहीं भाई साहब, नहीं समझ में आया. What on earth were you doing when these chapters were getting covered? कन्वर्जेंट और भाई साहब क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. ठीक है, तो अगर रेज ऑफ लाइट आर बेसिकली इवॉल्विंग फ्रॉम अ पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी नोन एज डाइवर्जेंट. ठीक है, एंड इफ दे आर कन्वर्जिंग एट वन पॉइंट, ठीक है, ये अगर भाई साहब कन्वर्ज होते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज कन्वर्जेंट. ठीक है, क्लियर है. ओके ओके ओके, तो इसमें तो कुछ खास समझने वाला था नहीं. Identifying convex and concave mirrors. When held close to an object, the concave mirror forms an erect and enlarged image of the object. कैसे? जब आपने कॉन्केव मिरर को और ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में. ठीक है, व्हेन हेल्ड क्लोज टू एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या, मतलब देखो आपको एक मिरर दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा गया है कि मिरर बताओ कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है. आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, तो उसको समझने का प्रयास कैसे करेंगे भाई साहब. व्हेन हेल्ड क्लोज टू एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भाई साहब क्लोज टू एन ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय क्लोज टू एन ऑब्जेक्ट. सो अगर आपने भाई साहब ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, बिटवीन, ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन फोकस एंड पोल, तो आपको भाई साहब इन अ कॉन्केव मिरर इमेज कहां पे मिलेगा, वर्चुअल में इमेज मिलेगा. ठीक है, इरेक्ट इमेज मिलेगा और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, है ना भाई साहब. दिस इज समथिंग दैट वी नो. ठीक है, व्हेन हेल्ड क्लोज टू एन ऑब्जेक्ट द कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. If the same mirror is taken further, the image gets smaller and smaller and gets inverted in nature. और हमने देखा भाई साहब, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम दूर लेकर जाते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जब हमने रखा ऑब्जेक्ट को, तो आपका डिमिनिश्ड इमेज मिल रहा है. ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इफ द ऑब्जेक्ट इज, यहाँ पे भाई साहब अगर हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा भाई साहब, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. If the object is kept beyond a center of curvature, अगर ऑब्जेक्ट को हमने beyond center of curvature रखा, ठीक है, if the same mirror is taken further, अगर भाई साहब further लेकर गए, it gets smaller and smaller, तो आपको भाई साहब highly diminished image मिल जाएगा. This will be highly diminished image that is going to get. तो इस तरह से अगर समझ लो आपको मिरर दिया हुआ है, आपको मालूम नहीं है कॉन्केव या कॉन्वेक्स है, जैसे आपने बहुत क्लोज रखा तो आपको इनलार्ज इमेज मिल रहा है, और जैसे मिरर को फार लेकर जा रहे हो तो आपको डिमिनिश्ड इमेज मिल रहा है. अगर ऐसा इमेजेस आपको मिल रहा है तो इसका मतलब इमेज मिरर क्या हो जाएगा, कॉन्केव. ठीक है, हाउएवर कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कहीं भी रखो, ठीक है, वेरेवर यू आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट, irrespective of wherever you are keeping the object, irrespective of wherever you are keeping the object. a convex mirror भाई साहब क्या करेगा, convex mirror will form erect and diminished image. erect और क्या बनाएगा भाई साहब, आपका diminished image of the object. ठीक है, ये हमेशा यही बनाएगा. तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर अगर आपको नहीं मालूम है, आपको एक मिरर दिया गया है और उसमें से कॉन्केव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, तो कैसे करेंगे आप, आपने अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा और आपको हाईली मतलब एक इनलार्ज इमेज मिल रहा है, वर्चुअल इमेज, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ कॉन्केव मिरर. और कॉन्केव मिरर के सामने से जब आप इमेज को लेकर जाएंगे तो डिमिनिश्ड इमेज मिलेगा, तो इसका मतलब वो कॉन्केव मिरर हो गया. कॉन्वेक्स मिरर में कहीं भी रखो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, wherever you are keeping the object, convex mirror will always give you a erect and diminished image. आपको erect और diminished image मिलेगा. In this way, by studying the nature of the images produced, we can identify the type of the mirror, whether it is convex or concave. तो इस तरह से on the basis of the image that you are basically getting, you can predict whether the image आपका जो mirror आप use कर रहे हैं वो convex है या concave है. ठीक है, uses of concave mirror depending upon the position of the object. There are several uses of the concave mirror. क्या क्या uses है भाई देखो, बार्बर शॉप
डेंटल हॉस्पिटल, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये डेंटिस्ट क्या करता है भाई साहब, आपके मिरर को ऐसे अंदर आपके मुंह में डालेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे देखना तो भाई साहब मुश्किल है, ठीक है, तो ऐसे डालेगा ताकि आप वो जो मिरर है कॉनकेव मिरर, वो उसके बराबर फोकस पे आपका दांत आ जाए। तो दांत में क्या कैविटीज हैं या डिसलोकेट हुआ है या क्या प्रॉब्लम्स है, दांत का एक बड़ा सा इमेज उसको देखने को मिलेगा। he or she, the dentist will be able to see a larger version of your tooth, ठीक है। सो बार्बर शॉप में यूज होता है, बार्बर शॉप में भी कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो बार्बर शॉप में जैसे मैंने आपको बोला, शेविंग जब करते हैं आप और बहुत माइन्यूटली आपको शेविंग करना है, तो बार्बर शॉप में, या आप इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस। तो जब भी आप कॉनकेव मिरर के ऑब्जेक्ट के पोल और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आपको एक लार्ज इमेज मिलता है, ठीक है। So that is basically what you get. ठीक है, सो यहाँ पे इन अ बार्बर शॉप और अ डेंटल हॉस्पिटल द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेयर बिटवीन द पोल एंड द फोकस। तो जैसे भाई साहब ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका पोल है, ठीक है, और ये है भाई साहब आपका फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने भाई साहब ऑब्जेक्ट को इधर रखा तो रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस, और फिर क्या है भाई साहब, रे ऑफ लाइट which appears to be coming from the center of curvature is meeting somewhere beyond, इन दोनों का भाई साहब यहाँ पे। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका इमेज, और इमेज भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इमेज हो जाएगा वर्चुअल, इमेज विल बी वर्चुअल, इमेज विल बी एनलार्ज्ड, ठीक है, इमेज आपका वर्चुअल भी होगा और क्या होगा, एनलार्ज्ड होगा। तो इफ यू आर एबल टू कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल एंड द फोकस, यू आर गोइंग टू गेट अ वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके मुंह में भाई साहब इसको डाल के, इसमें हम देखो दांतों का जो है तो बड़ा इमेज दिख रहा है हमको, ठीक है, दांतों का एक बहुत बड़ा इमेज आपको दिख जाएगा जो नॉर्मल आई पे लोकेट नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। ओके 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 ओके, तो और क्या है भाई साहब, टॉर्च एंड हेडलैम्प्स ऑफ व्हीकल्स, द सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट द फोकस, ठीक है। आपका भाई साहब टॉर्च एंड हेडलैम्प ऑफ व्हीकल्स, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। सो हमने देखा कि कॉनकेव मिरर क्या होता है भाई साहब, तो ये दिस इज बेसिकली एक मिरर है, ठीक है, और इसके फोकस पे हमने रख दिया एक हेडलाइट को, ठीक है, एक लाइट है समझ लो, दिस इज बेसिकली अ लाइट, इसके फोकस पे, कहाँ पे है भाई साहब, फोकस पे, ओके। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से भाई साहब रेज ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, इधर से भाई साहब क्या हो रहा है, रेज ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, इधर से भाई साहब क्या हो रहा है, ऐसे रेज जा रहे हैं, ठीक है, तो सारे फोकस से जा रहे हैं ना, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेज क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो जा रहा है, ठीक है, दिस इज बेसिकली गेटिंग डाइवर्ज। तो आपके ये वाले रेज सारे डाइवर्ज फैल जाएंगे, ठीक है। सो टॉर्च एंड हेडलैम्प्स ऑफ व्हीकल्स, द सोर्स ऑफ लाइट्स इज केप्ट एट द फोकस। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है भाई साहब, आपका डाइवर्जेंट रेज हो जाता है, और डाइवर्जेंट रेज पूरा पूरा फैल जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो दैट इज वन यूज ऑफ कॉनकेव मिरर्स। व्हाट इज द अदर यूज ऑफ कॉनकेव मिरर्स पीपल, हम अरे यार फ्लड लाइट्स होते हैं, देखो द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड अ लिटिल बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपके सोर्स ऑफ लाइट को हमने कहाँ रखा है भाई साहब, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर भाई साहब आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इट विल बेसिकली, नहीं डिमिनिश्ड इमेज क्यों होगा, देखो अरे यार ठीक है। सो फ्लड लाइट, द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड अ लिटिल बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपका यहाँ पे देखो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड, तो यहाँ पे रख रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे आ रहा है, यस डिमिनिश्ड इमेज विल बी फॉर्म, तो एक छोटा सा डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, ओके। वेरियस इक्विपमेंट्स यूजिंग सोलर एनर्जी, अभी देखो जैसे ये सोलर एनर्जी पैनल है, ठीक है, यहाँ पे चारों तरफ से भाई साहब सोलर एनर्जी आ रहा है, और कहाँ पे कन्वर्ज होगा, देखो एक केटली रख दिया आपने, गर्म हो जाएगी फटाफट, चाय बन जाएगी इधर। मैंने जैसे आपको बताया था अंडे का भाई साहब ऑमलेट बन जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पूरे रे को क्या कर रहे हो, ये समझ लो एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इस तरीके का कॉनकेव मिरर है, सन के रेज ऐसे आ रहे हैं, कहाँ पे कन्वर्ज होंगे, फोकस पे,
सन एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेस कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगे, फोकस पे। फोकस पे आपने कोई कुकर रख दिया, केटली रख दी, अंडा भाई साहब किसी सॉस पैन में रख दिया, वो भाई साहब फ्राई हो जाएगा पूरा, क्योंकि पूरा एनर्जी वहां पे कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। और यही सोलर पैनल का एक मकसद है, ठीक है। सो वेरियस इक्विपमेंट यूजिंग सोलर एनर्जी, सन इज एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस, सो इट्स रेज कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे देखो रेज कन्वर्ज हो जाते हैं प्रिंसिपल फोकस। जितने भी आपके होटल्स हैं उन चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि होटल्स में गेस्ट लोग आते ही रहते हैं और बार बार गीजर चलाते रहते हैं, और बहुत ही बार ऐसा होगा कि गीजर चला के रख दिया भाई साहब, भूल ही गए, ठीक है, इधर होटल वालों का मीटर बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इनका क्या होता है, इस तरह से सन की एनर्जी को यूज करते हुए पानी को गर्म ही रखते हैं, ये गीजर का कोई मामला ही नहीं है ना। तो आपका ये पानी गर्म जो रहेगा वो टंकी में रहेगा और वही सप्लाई होता रहेगा, दैट इज हाउ इट इज डन, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये देखो जैसे केटली रख दी आपने यहाँ पे, इसके बराबर फोकस पे केटली रख दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे आया ऐसे गया, ये पूरा जो भी केटली के अंदर है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा खासा गर्म हो जाएगा, जैसे गैस के ऊपर गर्म होता है वैसा ही, क्योंकि पूरा सन का एनर्जी जो है तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। द एंटायर रेज ऑफ द सन आर बेसिकली कन्वर्जिंग एट वन पॉइंट, ठीक है। क्लियर पेपलम, ओके। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, मिरर्स ऑन द साइड्स ऑफ, तो आपको देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को देख पाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को देख पाए, यही तो आपका रियर मिरर का पर्पस है। और ये कब होगा, जब कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप किसी भी चीज को रखेंगे उसका क्या फॉर्म होगा, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगा, छोटा सा इमेज फॉर्म होगा। और यही चाहिए आपको, क्योंकि अगर सबके बड़े बड़े इमेज आने लगे तो बड़ा ही एक गाड़ी दिखेगा, बाकी गाड़ियां दिखेंगी ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका रियर व्यू मिरर है जो एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो रियर व्यू मिरर्स के लिए व्हीकल्स में हम कौन से टाइप का मिरर के इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ओके। बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर फिटेड एट द गेट्स, एट द गेट एंड इन स्क्वायर। तो आपका देखो गेट्स में, बिल्डिंग के गेट्स में भी ऐसा रहता है, ठीक है, बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, या किसी बड़े शॉपिंग मॉल के सामने भी ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं ऐसे, ठीक है। आपने देखा है जब आप किसी शॉपिंग मॉल में एंटर करते हो तो सिक्योरिटी गार्ड एक टें ऐसे लेकर आता है भाई साहब, एक स्टिक रहता है उसके पास, और आपकी गाड़ी के नीचे ऐसे ट्रर ऐसे करेगा, देखा है आपने, नहीं, अरे तो उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर रहता है, मतलब पूरे गाड़ी का जो पूरा पिक्चर है इसका, उस दैट इज समथिंग दैट यू आर बेसिकली गोइंग टू गेट, ठीक है। तो इसमें सारा पूरे रास्ते के जितने भी गाड़ियां हैं वो सब दिख जाएंगी, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इमेज एक कॉन्वेक्स मिरर में फिट कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन द इमेज का जो साइज है वो डिमिनिश्ड हो जाता है, ठीक है, द साइज गेट्स डिमिनिश्ड, ओके। इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर डैश इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है, ओके। द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड एट डैश ऑफ अ कॉन्केव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस। कहां पे आएगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो कहां पे आएगा भाई साहब, प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। इट विल ऑलवेज बी एट द प्रिंसिपल फोकस। इन पार्किंग स्पेसेस ऑफ मॉल्स मिरर्स प्लेस्ड आर ऑफ व्हाट टाइप, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इमेजेस को ट्रेस आउट और लोकेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। मैच द टाइप ऑफ मिरर गिवन इन कॉलम 1, ठीक है, विद द साइज ऑफ द इमेज दैट इज फॉर्म्ड इन कॉलम 2। तो प्लेन मिरर भाई साहब क्या हो जाएगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर भाई साहब डिमिनिश्ड, ठीक है। तो प्लेन मिरर आपका सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, मतलब 1 का आपका हो गया B और 2 का हो गया भाई साहब C, ठीक है। 1B प्लेन मिरर सेम साइज, कॉन्वेक्स डिमिनिश्ड, ठीक है, ओके ओके ओके। क्या हो रहा है भाई साहब, कहीं नहीं जा रहे आगे, देखो तुम अटक गए भाई साहब।